workshop. And okay, so first of all, just give me one sec. Yeah, first of all, this program on soft skills is being organized in association with Johar Welfare Society. And we would also like to thank Mr. Shadab Sahib and Mr. Muhammad Amil for the effort they have put into this session. And I will just go over several things. So let me just share my screen here. Oh, I think, oh, sorry guys, give me one sec. Oh, can you make me host again? I have to screen share. Sorry guys, just give me one. So, Atishan, you can take time. My dear friend, this is Ambil on behalf of Johor Welfare Society. Fine. So, yeah, I please think we carry can on. start now. Yeah. Great. Carry on, Atishan. Okay. So first of all, I'll just mention a few things. Give me one second. So I'll just go over a few things. First of all, this is our website. And if you have any doubts regarding what we do, then you can visit this website. All of these links will be provided to you. So don't worry about that right now. So this is our website, and these are some of the soft skills training workshops we've done before. We've done basic soft skills training, which you can see here. And right now we'll be starting with the advanced soft skills training. And all of these videos explain what is there in the advanced soft skills training. And this is available on YouTube. This is our YouTube channel. These links will be provided later. And in this YouTube channel, you can see everything we've done before. And this is the soft skills advanced workshops. And in these videos, the course is introduced properly. So if you look at this video, 1 second. So this video is me explaining everything that will be in this course. So in all of these workshops, all the sessions. So if you have any doubts regarding what we'll be doing, you can just check that out later. So this is the entire course. And yeah, I think we can start with the session 1 now. So just hang on. So I would also like to mention that apart from this class, there will be a lot of exercises during the class, and then we will be putting the homework which you will do after the class. We'll be putting the homework on Google Classroom. So Google Classroom might be a bit some people might be new to Google Classroom, but we'll go over that later. So you'll have to join Google Classroom, and there you'll be given the assignments. And then we will have a Discord server. So some people might not know, some people might be new to Discord as well. So हाँ ओके, तो मैं एक बार हिंदी में भी बोल लेता हूँ. तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गूगल क्लासरूम पे सारा होमवर्क देने वाले हैं. गूगल क्लासरूम काफ़ी लोग नए होंगे गूगल क्लासरूम में. तो गूगल क्लासरूम में सारा हमारा जो भी होमवर्क क्लास के बाद जाएगा वो वहीं पर जाएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक और प्लेटफॉर्म जो है वो डिस्कॉर्ड है. डिस्कॉर्ड पे हम लोग, आपको कोई भी डाउट होगा या आपको कुछ भी डिस्कस करना होगा इस सेशन से रिलेटेड, कुछ भी आपको कोई भी डाउट आएगा, आप वहां पर पूछ सकते हैं. हम लोग वहां पर अवेलेबल होंगे. और ये डिस्कॉर्ड सर्वर और गूगल क्लासरूम की लिंक्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगी जब भी सेशन ओवर होगा. तो अभी आई थिंक हम लोग सेशन से शुरू कर सकते हैं.
तो और ऑल्सो आई मेंशन कि जो जनरल टाइमिंग होगी आज के तरह नहीं होगी. यूजुअली जनरल टाइमिंग आपके 12:30 को होगी संडेज को, और ये क्लास हर 2 हफ्ते में एक बार एक सेशन होगा, हर 2 वीक्स में, और 12:30 को होगा संडेज को. तो अभी आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सेशन से. तो एक ठीक है. तो we'll be going over parts of speech. तो can someone tell me parts of speech क्या होते हैं? किसी को कोई guess लेना है, और anybody wants to know what parts of speech are? Any guesses? Anyone? Parts of speech. आप गलत हो सकते हैं, आपको कोई no pressure to be right. जरा देखी कौन कौन है, मैं भी आ गई. Parts of speech. Eight parts of speech. Sorry? There are 8 parts. रखो फोन. किसी को चैट में लिखना है. ओके. तो आपको if you want to write anything in chat, any guesses in chat, you can speak. So parts of speech, there are several parts of speech. I think you might be familiar to some of them. There's nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and determiners. तो हम अभी सबके ओवर जाएंगे, सारे 8 parts of speech के ओवर. So am I audible? Hello? Yes, Atisham, you're audible. Okay. Yes, sir, yes. So, Yes. okay. So first of all, we have nouns. I think nouns के बारे में सबको पता होगा. A noun is anything, a person, place, animal or thing, as it's mentioned here. And there are 2 types of nouns. One is common nouns and proper nouns. So common nouns होते हैं any generic name. So if I say dog, there are millions of dogs in the world. So I'm not specifying a specific type of dog. So a dog will be a generic name. So a dog is a common noun. And for proper noun is जहाँ yes यहाँ पर लिखा है identifies a single entity. मतलब अगर मैं कहूँ for example एहतशाम, तो एहतशाम बहुत सारे तो नहीं है. हाँ, बहुत लोग के नाम शायद होंगे एहतशाम, लेकिन एहतशाम एक ही है जो मैं अपने आप को रेफर कर रहा हूँ. तो मैं एहतशाम प्रॉपर नाउन हुआ. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस है कि कॉमन नाउन एक जेनेरिक नाम होता है जो बहुत सारी चीजों के लिए होगा. तो अगर मैं एक ह्यूमन कह रहा हूँ या डॉग कह रहा हूँ, तो बहुत सारे ह्यूमन है, बहुत सारे डॉग हैं, लेकिन एहतशाम एक ही हो. तो हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस हो गया. एंड देन we have an example here जहाँ लिखा है John plays with his dog with a stick at his house. तो this is a very long sentence, और अगर आप इसमें जो भी ये highlighted वाले words देख रहे हो, ये सारे नाउन है. तो यहाँ पर जॉन है, डॉग है, स्टिक है और हाउस है. तो क्या कोई बता सकता है जॉन प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? आपको चैट में लिखना है या बोलना है, आप बोल सकते हो. Sir, John is a proper noun. यस करेक्ट. तो बिल्कुल जॉन प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि वो एक ही जॉन है. बहुत लोग के नाम होंगे जॉन, लेकिन जॉन जिस जॉन को हम रेफर कर रहे हैं वो एक ही है. और फिर यहाँ पर डॉग आपका हो गया कॉमन नाउन, स्टिक आपका हो गया कॉमन नाउन, और हाउस भी आपका हो गया कॉमन नाउन. क्योंकि डॉग, स्टिक और हाउस बहुत सारे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक की बात. तो जॉन प्लेज विद हिज डॉग विद अ स्टिक एट हिज हाउस. अगर यहाँ पर डॉग का एक नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता. तो एक सेकेंड. Am I audible? Can some people not hear me? Atisham, I can hear you. Your voice is clear. We can hear you properly. Okay.
So we'll move on to the second one, which is pronouns. So these are similar to nouns, but they are basically a replacement for a noun. मतलब noun की जगह अगर कुछ और यूज करना है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ या एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ जॉन के बारे में, जॉन एक इंसान है जो जिसके बारे में मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ बेसिकली. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जॉन बार बार, आई विल से जॉन डज दिस, जॉन डज दैट, आई विल यूज ही. तो वर्ड्स लाइक आई, यू, ही, शी, दे, देम, वी, ऐसे जो स्पेसिफिक रिप्लेसमेंट होते हैं नाउन्स के लिए, उनको प्रोनाउंस कहते हैं. तो ये एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू प्ले में अगर जो आई है ये हमारा प्रोनाउन है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को रेफर कर रहा हूँ, और आई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो नाम है एहतशाम इज गोइंग टू प्ले के जगह अपने नाम को रिप्लेस कर दिया, तो आई हमारा हो गया प्रोनाउन. किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ. सबको समझ आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So now we'll move on to Yes, sir. verbs. Yes, sir. Okay. तो verbs सबसे सिंपल होते हैं. Verbs is basically an action. कोई कुछ कर रहा हो. एग्जाम्पल में है आई एम गोइंग टू प्ले. तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि गोइंग तो एक सिंपल वर्ब है. गोइंग मतलब जा रहे हो, बस सिंपल वर्ब है. लेकिन जो एम है यहाँ पर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है. तो हमारे दो टाइप के वर्ब होते हैं. एक सिंपल वर्ब होता है, जैसे कि आई एम ईटिंग चॉकलेट, इसमें आपका वर्ब हो गया ईटिंग, ये सिंपल वर्ब है. जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूजुअली एक अब यहाँ पर मैं आई गोइंग टू प्ले नहीं लिख सकता, यहाँ पर मेरा एम तो आएगा ही. तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपके मेन वर्ब के साथ लगता है. ओके, तो राइट, ठीक है. ये सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके ओके. तो वर्ब्स सिंपल है, कोई भी No, एक्शन, sir. कोई कुछ कर रहा है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव एडजेक्टिव्स. अब यहाँ से चीजें थोड़ी ट्रिकी होती हैं. यहाँ से चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं क्योंकि एडजेक्टिव्स आर अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. तो नाउन हमने पहले विजिट किया था. नाउन इज बेसिकली कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स में नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव होता है. तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल में द रेड बॉल फेल ऑन द हार्ड ग्राउंड. तो यहाँ पर हमारे नाउन्स क्या हैं कि कोई बता सकता है? द रेड बॉल फेल ऑन द हार्ड ग्राउंड. कोई गेस कर सकता है हमारे नाउन्स क्या हैं? Okay. आपको चैट में लिखना है तो चैट में लिख सकते हो. टेक योर टाइम. बॉल, यस, करेक्ट. एंड वी हैव एक और नाउन है. Red. नहीं, यहाँ पर रेड नहीं है. यहाँ पर मैं आपसे नाउन पूछ रहा हूँ. ओके, तो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर नाउन्स है हमारे बॉल और Sir, ग्राउंड. ground. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ पर हमारे जो नाउन्स हैं वो है बॉल और ग्राउंड. क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉमन नाउन्स हैं. तो यहाँ पर हमारे कॉमन नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये दो वर्ड. बॉल क्या है? बॉल रेड है. और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड हार्ड है. तो हमारे एडजेक्टिव्स हो गए. तो द रेड बॉल मतलब जो हमारा बॉल है, जो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है रेड, और जो ग्राउंड है उसको डिस्क्राइब कर रहा है हार्ड. बॉल क्या है? रेड है. और ग्राउंड क्या है? हार्ड है. तो हमारे एडजेक्टिव्स यही होते हैं. जो हमारे नाउन है, जो हमारे कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन या जो भी हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं वो कैसे हैं. ये एडजेक्टिव्स होते हैं. और अब यहाँ पर एडजेक्टिव सबको समझ आ गया? कोई भी डाउट तो पूछ लो. मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूँ अगर नहीं समझ आया तो. Okay, sir. आ गया सबको समझ? Yes, sir. ठीक है. ओके, Yes, ये हमारे sir. Yes. ठीक है. तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हो गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली. अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे एडवर्ब्स. एडवर्ब्स एडजेक्टिव से सिमिलर होते हैं, बस लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बीच में. दोनों का काम सिमिलर होता है, लेकिन ये कहाँ पर यूज होते हैं ये थोड़ा डिफरेंट होता है. तो अब हमारा एडजेक्टिव्स था एक ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब होता है एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. नाउ हमने पहले देख लिया था कि नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव कैसे नाउन को डिस्क्राइब करता है.
अब हम मूव ऑन करेंगे एडवर्ब पे। एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब है, सेकेंड सॉरी, वर्ब है हमारा एक्शन। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, आई ईट चॉकलेट, तो ये हमारा ईट और गोइंग हमारे हो गए वर्ब्स। तो अब इसको क्या डिस्क्राइब करता है? तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल है ही रैन अवे क्विकली। अब ही रैन अवे क्विकली में हमारा वर्ब क्या है, कोई बता सकता है? ran, बिल्कुल, हमारा रैन है वर्ब, Ran. मतलब हमारा एक्शन जो है वो वर्ब है। हमारा एक्शन क्या है? रैन। तो रैन को डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली। ही रैन अवे क्विकली, मतलब वो कैसे भागा? क्विकली। तो क्विकली हमारा बन गया एडवर्ब, एक ऐसा वर्ड जो हमारे एक्शन को, जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पर रैन को डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली, कि वो कैसे भागा, वो क्विकली भागा। ठीक है, सबको समझ आ गया एडवर्ब क्या है? yes sir, ओके। Yes. तो यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दोनों डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी एक्चुअल चीज को, नाउन, और एडवर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस वैसे तो सिंपल होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े विद जैसे प्रेपोजिशंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो प्रेपोजिशंस यहाँ पढ़ के बताऊं तो shows the relation between the noun or pronoun and other words in a sentence. तो जो preposition है वो कोई भी दो words को यूजुअली noun और pronoun या किसी और टाइप के word को कनेक्ट करते हैं। prepositions में हमारे words आते हैं with, near, next to, before, after, ऐसे टाइप के वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसी की आपको अगर हिंट चाहिए तो preposition वर्ड में ही पोजिशन आता है। तो मतलब यूजुअली चीजों की पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं प्रेपोजिशन। तो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, तो नेक्स्ट टू हमारा प्रेपोजिशन हो गया। तो अब यहां पर एग्जांपल अगर हम लिए तो आई वाज विद माय ब्रदर, तो विद आपकी पोजीशन बता रहे हैं बेसिकली कि विद माय ब्रदर, तो विद हमारा प्रेपोजिशन हो गया। द बर्ड वॉज नियर इट्स नेस्ट, तो नियर भी पोजिशन बता रहा है, बर्ड नेस्ट के नियर थी, वो आपकी पोजिशन बता रहा है, तो नियर भी हमारा प्रेपोजिशन हो गया। यहाँ पर सबको प्रेपोजिशन समझ आ गया? एक बार मैं रिपीट करूं अगर कोई भी डाउट है तो। यस सर। समझ आ गया? ओके, Yes, कोई भी sir. डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अप हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शन सबसे ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में आपको कंजंक्शंस दिखेंगे। कंजंक्शंस बेसिकली वर्ड्स को और फ्रेजेस को मिलाते हैं। तो आप एग्जाम्पल ही ले लो, मी एंड माई फैमिली वेंट टू द मार्केट। अब इसमें एंड आपका मी और माई फैमिली को साथ में कनेक्ट कर रहा है। अगर आप सिर्फ एंड हटा दो और बोलो मी माई फैमिली वेंट टू द मार्केट, तो अजीब लगेगा, आप बोलोगे कि मी माई फैमिली, इसमें क्या हो रहा है ये। लेकिन यहाँ पर एंड जो है वो आपको बताता है कि मी अलग है, माई फैमिली अलग है, मैं गया और मेरी फैमिली गई। तो एंड यहाँ पर आपका कनेक्ट कर रहा है। तो कंजंक्शन यूजुअली दो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी सो बहुत ज्यादा कॉमन कंजंक्शन होता है, सो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो यूजुअली जब आप वर्बली बात करते हो। तो सो आई कुडंट डू माई होमवर्क। अब यहाँ पर इसके पहले कुछ भी बोला हो कि आई वॉज टायर्ड सो आई कुडंट डू माई होमवर्क, तो यहाँ पर आई वॉज टायर्ड और आई कुडंट डू माई होमवर्क को कनेक्ट किया गया है। आप सिर्फ बोलो आई वॉज टायर्ड आई कुडंट डू माई होमवर्क, इससे ज्यादा बेटर है आप बीच में एक सो डालो ताकि दोनों कनेक्ट हो, तो आपको पता चले कि ये टायर्ड था इसलिए होमवर्क नहीं किया। तो आपके हो गए कंजंक्शंस, ऐसे वर्ड जो कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें कोई भी डाउट? सबको समझ आ गया? ओके, तो आई विल मूव ऑन। Yes, sir. ओके, अब ये डिटरमिनर्स ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि डिटरमिनर्स में बहुत कुछ आता है। इसमें यहाँ लिखा भी है कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आप पहले हम गो ओवर कर लेते हैं क्या क्या आता है। तो डिटरमिनर्स में आते हैं आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स और क्वांटिफायर्स। अब आपको ये वर्ड्स को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अब बेसिकली डिटरमिनर्स में सारी चीजें आ जाती हैं, जो बेसिक से बेसिक चीजें जो आप यूज करते हो। तो आर्टिकल्स
आप लोग को पता है आर्टिकल्स? Yes, sir. ठीक, ओके। और अब माय फ्रेंड इज अ लॉयर में आर्टिकल कहाँ पर है, कोई बता सकता है? फ्रेंड के बाद ए। बिल्कुल, यहाँ पर अ है आर्टिकल। और यहाँ पर देख के, साइड से ही देख के कोई बता सकता है ये माय क्या है? आर्टिकल पोजेसिव, सॉरी, आर्टिकल पोजेसिव, Possessive. डेमोन्स्ट्रेटिव, Sir, पोजेसिव, possessive. बिल्कुल। Possessive. तो यहाँ ये पोजेसिव है। मतलब पोजेसिव क्या होता है? माय, योर, हिज, हर, कोई भी कोई चीज पोजेस करता है, कोई भी किसी चीज का होता है, तो उसको पोजेसिव कहते हैं। और हमारे आर्टिकल में मैं एक बार बता देता हूँ, आर्टिकल बेसिक चीजों के लिए यूज होते हैं, अ एंड द। आपके हर सेंटेंस में आपको आर्टिकल मिलेगा, तो अ एंड और द। फिर आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी बेसिक हैं। और फिर आपके न्यूमरल्स हैं, कोई भी आप नंबर को वर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हो तो वो आपका न्यूमरल्स हो गए। ऑर्डिनल्स आपके हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये न्यूमरल से बहुत सिमिलर है। कोई भी आप पोजीशन बता रहे हो किसी चीज की, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और क्वांटिफायर्स हैं, मतलब कोई किसी भी चीज की डिग्री ऑफ क्वांटिटी दे रहा है, मतलब कितना है कोई चीज, वो हो गया अ फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, एनी, सम और वेरी। ये सारे वर्ड्स आप यूज करोगे अगर आप बताना चाह रहे हो कोई चीज कितनी है, हाउ मेनी। तो ये आपके सारे डिटरमिनर्स हो गए। डिटरमिनर्स में बहुत कुछ आता है, तो आपको अभी इसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद एवेंचुअली आपको खुद आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और अब यहाँ पर ये एक और पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शंस। अगर आप याद करो तो इंटरजेक्शंस यहाँ पर मेंशन नहीं था। मैं सिर्फ मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था। अब मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सारे हमने कर लिए हैं। लेकिन इंटरजेक्शंस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन वो मेन में नहीं आता। आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये जनरली थोड़ा इनफॉर्मली यूज होता है। तो इसमें आप यूजुअली कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हो, उसमें यूज होते हैं इंटरजेक्शन। एंड यूजुअली हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क तो सबको पता होगा, ये साइन को बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में यूज होता है इंटरजेक्शन के। इंटरजेक्शन होते क्या है? इंटरजेक्शन वाओ जैसे वर्ड्स होते हैं, वाओ, ओ नो, अलास, ऐसे टाइप के वर्ड को इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो आप यूजुअली वर्बली यूज करते हो, आप लिखते नहीं हो। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, वाओ दैट फुटबॉल प्लेयर इज रियली टैलेंटेड। तो आप किसी फुटबॉल प्लेयर को देख के इंप्रेस हो रहे हो, तो आप वाओ बोलोगे, और वाओ के आगे आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपकी एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, इससे इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। किसी को कोई डाउट इंटरजेक्शन के बारे में? No, sir. Sir, please do No, repeat. Sir. ओके, आई विल रिपीट। तो इंटरजेक्शन मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नहीं आते हैं। जो मैंने 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, इंटरजेक्शन उनके साथ नहीं आते, क्योंकि इंटरजेक्शन थोड़ा इनफॉर्मली यूज होते हैं। जैसे आप डेली भाषा में यूज करोगे, लेकिन आप एसेज में या ईमेल्स में यूजुअली नहीं यूज करोगे, क्योंकि ये थोड़े इनफॉर्मल होते हैं। तो इंटरजेक्शंस में कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हो आप, या कोई भी मतलब टाइप ऑफ फीलिंग आपको एक्सप्रेस करनी है या किसी फ्रेज के साथ, तो आप उसको इंटरजेक्शंस को यूज करो। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, वाओ दैट फुटबॉल प्लेयर इज रियली टैलेंटेड, तो आप कहना चाह रहे हो कि दैट फुटबॉल प्लेयर इज रियली टैलेंटेड। लेकिन आप वाओ के बिना भी कह सकते हो उसको, लेकिन वाओ से आप एक फीलिंग का सेंस दे रहे हो कि हाँ, मैं इससे इंप्रेस हुआ हूं। तो वाओ जैसे जो वर्ड्स हैं, वो बाकी 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं, वो आते हैं इंटरजेक्शंस। अब आप बोलोगे ओ नो, ओ नो बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन ओ नो कहीं और नहीं आता, इंटरजेक्शंस में आता है। तो हाँ, जैसे चैट में भी लिखा है, ऊप्स टाइप के जो इंटरजेक्शन होते हैं, ये यूज होते हैं। ठीक है। अब हम लोग लाइव क्विज तो बाद में, लेकिन इसके पहले हम एक बेसिक सा क्विज देखेंगे, देखते हैं आप कितने लोग आंसर कर पाते हो। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। आप कोई बता सकता है कि ये यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? क्या ये preposition है, क्या ये एडजेक्टिव है, या ये नाउन है? आप चैट में Noun. लिखते Adjective. Adjective, sir. adjective. एडजेक्टिव, करेक्ट। ये एडजेक्टिव क्यों है, तो बता सकता है? Because he described the
बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो सर एडजेक्टिव क्वालिटी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्वालिटी तो यहाँ पर हमारा अगर हम एडजेक्टिव में जाएं तो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन यहाँ पर नाउन हमारा ड्रेस है ड्रेस डिस्क्राइब हो रही है ड्रेस कैसी है ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल हमारा हो गया एडजेक्टिव करेक्ट नेक्स्ट है व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू इसमें हमारा जो शी है वो कंजंक्शन है प्रेपोजिशन है या प्रोनाउन है Pronoun. प्रोनाउन Pronoun. सर प्रोनाउन करेक्ट प्रोनाउन क्यों है प्रोनाउन बिल्कुल बिल्कुल Pronoun. प्रोनाउन वो क्यों है क्योंकि प्रोनाउन इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन यहाँ पर हमारा व्हाट डिड जो भी शी है जो भी वो पर्सन है उसकी जगह हमने शी बोल दिया क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है नाउन तो यहाँ पर करेक्ट ये हमारा है प्रोनाउन नेक्स्ट अप वी हैव आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल यहाँ पर अंडर क्या है Preposition. अंडर इज प्रीपोजिशन Preposition. Preposition. बिल्कुल Preposition. प्रेपोजिशन क्यों है क्योंकि यहाँ पर उसकी क्या बताई जा रही है Position. बिल्कुल उसकी पोजीशन बताई जा रही है जैसे मैंने आपको हिंट बताया था प्रेपोजिशन में पोजीशन वर्ड आता है मतलब कोई भी चीज की पोजीशन बताई जा रही है तो वो प्रेपोजिशन हो गया और यहाँ पर आई लेफ्ट माई शूज की पोजीशन बता रहे हैं कि वो किचन टेबल के नीचे है इट्स अंडर द किचन टेबल तो अंडर आपका प्रेपोजिशन हो गया यहाँ पर नेक्स्ट वी हैव इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज अब ये थोड़ा ट्रिकी है कोई बता सकता है एडवर्ब कंजंक्शन या वर्ब ये क्या है सर वर्ब 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 या verb. एडवर्ब So adverb. सर एडवर्ब Adverb, sir. Adverb. Verb. वर्ब ओके तो अब इसका सही आंसर आप एक बार ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो वी फिनिश हमारा वर्ब यहाँ पर फिनिश है तो एडवर्ब अगर बिल्कुल ये क्विकली हमारा एडवर्ब है क्यों है एडवर्ब क्योंकि जो हमारा क्विकली है वो फिनिश को डिस्क्राइब कर रहा है फिनिश हमारा मेन वर्ब है फिनिश को डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली तो अगर हम वापस यहाँ पर जाएं एडवर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब तो एम आई ऑडिबल अच्छा तो एडवर्ब इज बेसिकली अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और यहाँ पर हमारा जो क्विकली है वो डिस्क्राइब कर रहा है फिनिश को तो वी विल फिनिश आवर वर्क क्विकली मतलब हम अपने वर्क को फिनिश करेंगे जल्दी तो फिनिश को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये हमारा एडवर्ब हो गया वर्ब कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्विकली तो आप बता रहे हो कैसे कर रहे हो एक्शन की तरह ही है लेकिन नहीं हमारा मेन वर्ब जो है वो फिनिश तो ये हो गया हमारा एडवर्ब नेक्स्ट अप हमारा ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5 इसमें हमारा वर्क वर्ब है पोजीशन है या एडवर्ब प्रीपोजिशन है या एडवर्ब सर इट्स वर्ब ओके तो करेक्ट ये हमारा वर्ब है यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं है यहाँ कोई किसी चीज की पोजीशन भी नहीं बताई जा रही है तो हमारा वर्क हो गया और हमारा वर्क हो गया वर्क कि हम एक्शन बता रहे हैं नेक्स्ट आई वांट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स Noun. बिल्कुल ये हमारा नाउन है नाउन ये लेकिन क्या ये कॉमन नाउन है या Noun. प्रॉपर नाउन है नाउन लेकिन क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है Common. कॉमन नाउन Common noun. Common noun. Common Exactly. noun. Common. कॉमन नाउन ये क्यों है क्योंकि ये एक जेनेरिक ये हमारा एक जेनेरिक वर्ड है यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी होती है ना एक स्पेसिफिक के नाम हम नहीं ले रहे हैं तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन यहाँ पर पूछा नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए फिर आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर में मेट क्या है वर्ब प्रेपोजिशन या इंटरजेक्शन Interjection. वर्ब करेक्ट क्योंकि मेट एक्शन नहीं ओके तो यहाँ पर हाँ वर्ब है आपको लग सकता है प्रपोजिशन है लेकिन यहाँ पर किसी चीज की प्रपोजिशन नहीं बताई जा रही है और इंटरजेक्शन भी नहीं है क्योंकि कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है अब यहाँ पर वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6 ये इंटरजेक्शन है प्रपोजिशन है या प्रोनाउन Interjection. इंटरजेक्शन अब ये इंटरजेक्शन क्यों है प्रीपोजिशन क्यों नहीं इंटरजेक्शन क्योंकि हाँ प्रीपोजिशन क्यों नहीं किसी चीज की पोजीशन तो नहीं बताई जा रही है वेल में किसी चीज की पोजीशन नहीं बताई जा रही है प्रोनाउन क्यों नहीं ये किसी नाउन का रिप्लेसमेंट नहीं है ही शी आई दे देम ऐसा कुछ नहीं है ये और वेल क्यों क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से ये कनेक्ट कर रहा है और अगर हम वापस एक बार इंटरजेक्शन को व्यू करें तो वेट
इंटरजेक्शन हमारा ओके तो हाँ हमारा जो इंटरजेक्शन है और जो कंजंक्शन है वो सिमिलर होते हैं, उनको दो वर्ड एक ही चीज के यूज होते हैं, तो ये हमारा एंड सो की तरह जॉइंस वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर। तो ये हमारा यहाँ पर इंटरजेक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया बेसिकली। सिमिलर वर्ड्स भी हैं तो आपके लिए इजी है याद रखना। यहाँ पर एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड, इसमें ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है? कंजंक्शन। Conjunction. सिंपल, क्योंकि यहाँ Conjunction. पर दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं है ये। फिर आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी। सर वर्ब। ओके वर्ब एक आंसर, कोई और? Pronoun. प्रोनाउन ओके एक और Preposition. आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। अब ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने इसके पहले बोला था प्रेपोजिशन पोजीशन के लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन। लेकिन हाँ ये इसका असली आंसर प्रेपोजिशन है। ये प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नाउन रिप्लेस नहीं हो रहा है ना। प्रोनाउन तो होता है ही, शी, दे, देम, आई, वी, ऐसे टाइप के वर्ड, लेकिन वो ये नहीं है। वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एक्शन थोड़ी ना है। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट, गो आउट हमारा हो गया वर्ब। ये प्रेपोजिशन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि मैंने बोला था पोजीशन बताई जा रही है किसी चीज की, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिकली पोजीशन के लिए नहीं यूज होता, वो प्रेपोजिशन बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। लेकिन ये आफ्टर पोजीशन के लिए भी तो यूज हो सकता है। अगर आप नोटिस करो तो आफ्टर एक चीज की पोजीशन बताई जा रही है, तो आफ्टर लंच मतलब लंच कोई एक्शन है, तो मतलब लंच के बाद, लंच आफ्टर, तो वो एक तरीके से पोजीशन ही बताई जा रही है। ठीक है, तो सबको समझ आ गया? ये बेसिक क्वेश्चंस थे ताकि sir. आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। यस सर। ठीक है, अब हम लोग एक लाइव क्विज करेंगे। अब इस लाइव क्विज में आप लोग को आंसर करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लाइव क्विज को ज्वाइन करना है। यह आपकी बेसिक प्रैक्टिस की तरह है। हाँ, अब मेरे को बस 1 मिनट दे। ठीक है, तो अब आपको एक लिंक ज्वाइन करनी है। ये लिंक है joinmyquiz.com। मैं आपको चैट में लिख देता हूँ। आपको ये लिंक ज्वाइन करनी है, और जब आप ये लिंक ज्वाइन करोगे तो आपको एक कोड पूछा जाएगा। वो आपका कोड है 131166, जो मैं ऑल्सो चैट में लिख रहा हूँ। आपकी लिंक है joinmyquiz.com, जो मैंने चैट में लिख दिया है, और आपका कोड है 131166। आप अपना टाइम लीजिए, आपको 2 मिनट देने हैं, आप खोल लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो कैसे करना है तो यहीं पर आप पूछ सकते हैं। लिंक है जॉइन, मैंने चैट में भी लिख दिया है, joinmyquiz.com, joinmyquiz.com, और ये आपका कोड 131166। यहाँ आपको अपना नाम दिख रहा होगा अगर आपने ज्वाइन किया है तो।
किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको ज्वाइन करने में, ज्वाइन पेज को? Awesome. Please join this quickly. अरे सर गूगल से ज्वाइन करनी है। हाँ, आप गूगल पे डालोगे joinmyquiz.com, ये यहाँ जो लिखा है तो आपका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक हम बस एक मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग आ गए हैं। ठीक है, फिर आई थिंक हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ये Okay, sir. ओके, तो ये आपका अभी क्विज है, आपको स्क्रीन में ही दिखाई देगा गूगल पे जाए। आपको पहले बता दूं कि आपको अपनी स्क्रीन पे देखना है, आपके यहाँ पर नहीं, जो स्क्रीन शेयर्ड है वो बस लीडर बोर्ड के लिए, आपको अपनी स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन आंसर करने हैं। अभी मोहम्मद अयान फर्स्ट आ रहे हैं, तो आपका और शोएब भी टाइप है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही आंसर करके। टायर फट गए, खराब हो गए। रोकना, टायर फट गए इसका आगे वाला, टायर ट्यूब दोनों फट गए। यहाँ पे भी शोएब फर्स्ट पे हैं, लीडर बोर्ड बीच बीच में देखना है तो आप देख सकते हो।
अगर आप क्विज नहीं ज्वाइन कर पाए हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप प्रैक्टिस के तरह सेम क्विज को बाद में भी कर सकते हो, और आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा एक क्विज, तो वो कोई वरीज नहीं है, आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, तो आई थिंक अब हम एंड कर सकते हैं क्विज को। आपको बाद में इसको रिविजिट करना होगा तो आप कर सकते हो कि सेकंड। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मतलब शोएब, सोफिया और मोहम्मद अयान ने सही से समझा है कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब ने नहीं समझा है, इसका मतलब शायद से आपको थोड़ा और टाइम लगे सारे क्वेश्चन सही आंसर करने में या ज़्यादा जल्दी आंसर करने में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे साथ काम करेंगे, आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप सही से समझेंगे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे, चाहे वो धीरे धीरे क्यों ना हो, आप इवेंचुअली कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस है, और यहाँ पर आपको और प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इस पे बेटर हो। तो अब यहाँ पर मैं बस मेंशन कर देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये आपको होमवर्क क्विज दिया जाएगा, और आपको वेट, अच्छा ये शेयर नहीं हो रहा, सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर मैं बस मेंशन कर देना चाहूँगा कि आपको होमवर्क क्विज मिलेगा, और आपका जो गूगल क्लासरूम है इस पे आपको अपना असाइनमेंट दे दिया जाएगा, और यही डिस्कॉर्ड है, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ये सब आपको, इन सब की लिंक्स अभी मिल जाएंगी थोड़ा टाइम में व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप के थ्रू आपके इन सब की लिंक्स मिल जाएंगी, और जो पहले जो मैंने सारी वेबसाइट आपको दिखाई थी, आपको जो यूट्यूब चैनल मैंने दिखाया था, आपको जिस क्विज से मैंने प्रैक्टिस करवाया है, वो सबकी लिंक्स भी मिल जाएंगी। तो आई थिंक आज का सेशन बस इतना ही है।
आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप अभी पूछ सकते हो। सर सबसे पहली क्लास हो गई थी क्या? आप चैट पे लिख दो ताकि थोड़ा और इजियर हो जाएगा मेरे लिए पढ़ के आंसर करना। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो चैट पे आप लिख दो। हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हर 2 वीक्स में संडे को 12:30 पे क्लास होती। 12:30 यहाँ पर जो हमारा ये सेशन 1 था, जो हमारा सेशन 2 है वो 12:30 होगा। और ये हमारा जो क्या गूगल क्लासरूम है और डिस्कॉर्ड है ये ऑलरेडी बन चुका है और इसकी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको दिख जाएगा। और कोई क्वेश्चन, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है आप चैट पे लिख दो। ठीक है, तो आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। आप सबने मीटिंग अटेंड की। अगर आपको और सीखना है, राइटिंग सेक्शन होने वाला है, अभी हमारा राइटिंग सेक्शन चल रहा है, हमारा स्पीकिंग सेक्शन भी आएगा। और ये सब अगर आपको राइटिंग और स्पीकिंग में बेटर बनना है तो आप सारे सेशन ज्वाइन करिए और आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक अब हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.